Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn about friction. This is part 1 of the subject Physics class 9. So the contents of this chapter are introduction, friction, types of friction, friction by liquid and gases, normal reaction, measurement of friction, calculation of different types of frictions, comparison between mu static, mu kinetic, and mu normal reaction. Factors affecting friction, advantages and disadvantages of friction, control of friction, ways of increasing friction, and questions based on friction. तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं एक फेनोमेना का. अगर आप कोई फुटबॉल को किक करते हो तो वो रोल होके एक कुछ डिस्टेंस पे आके रुक जाता है. और अगर आप कोई बुक को पुश करने की कोशिश करते हो कोई हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई, तो आप अपने फिंगर से उसको पुश करने का ट्राई करते हो पर वो बुक हिलती नहीं है. तो ये सब सम एक्सटर्नल इनविजिबल और रिटार्डिंग फोर्स से होता है जो वो सिस्टम पे एक्ट होता है, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट ऑफ बॉडीज होते हैं. और इस रिटार्डिंग फोर्स जब वो बॉडी मूव करती है और रेस्ट पे होती है किसी और बॉडी पर, तो ये एक्शन में आती है. तो फ्रिक्शन सबसे पहले क्या होता है? ये रिटार्डिंग फोर्स जो रिलेटिव मोशन किसी बॉडी को अपोज करता है किसी और पर, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स और फिर सिंपली फ्रिक्शन कहा जाता है. डेफिनेशन इज द फोर्स विच कम्स टू एक्ट अलोंग द डायरेक्शन tangential to the surface in contact and opposes the relative motion is called frictional force or friction. So, cause of friction. When two surfaces are in contact with each other, their surfaces appear to be smooth to the naked eye, but when seen under a powerful microscope, every surface appears uneven with a number of depressions and elevations. When a body is placed on another, the elevation of one body gets fixed in the depressions of the other. This is called interlocking. It means that there is an interlocking between surfaces of two bodies. If one body is pulled over the another because of this interlocking, difficulty is experienced in moving the body. In other words, a resisting force comes into play which resists the motion. Thus, frictional force is due to the roughness of the surface. फ्रिक्शनल रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक. तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. The force of friction that exists between two surfaces in contact as long as they are relatively at rest, even though
an external force acts on it is called static friction, and it is represented by force static, friction static. एंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है. The body remains at rest till the frictional force is equal to the external force. तो ये स्टैटिक होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है और हिल नहीं रहा है, अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसे फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, अगर फोर्स लगाए तो वो नीचे से फ्रिक्शन में 5 न्यूटन का होगा, पर फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. हम बढ़ा रहे हैं फोर्स, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, पर जब फोर्स बढ़ जाएगा वो मूव करेगा. और काइनेटिक एनर्जी, जब वो मूव कर जाएगा, थोड़ा मूव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसको पकड़ लेगी. और काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है. आप अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट पुश करने का ट्राई कर रहे हो तो पहले आपको बहुत ताकत लगती है, बाद में वो धीरे से पुश हो जाता है, तो आपको लगता है अचानक से हल्का हो गया. तो वो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा था और बाद में वो जब मूव कर रहा था तब भी से उसको काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है. काइनेटिक फ्रिक्शन comes into play when there is actual relative motion between two bodies. तो दो टाइप के काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं. पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन. हम काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन is when an object slides or moves on a surface. The frictional force exerted by the surface on the object is called kinetic friction or sliding friction. It is denoted by this. Kinetic friction. The force of kinetic friction is always less than the force of limiting friction. Example, a horse pulls the cart harder before it begins to move than when it is in motion. Same thing can be applied in the case of cycling. Rolling friction. So the example पहले लेते हैं. Example is due to rolling friction between roller and road, small local deformations take place in the contact region. Magnitude of rolling friction is much less than that of static friction. Definition is the frictional force that develops due to rolling is called rolling friction. तो ये हो गया थ्योरी पार्ट. और अगर हमें इसे ग्राफ पे डिनोट करना है तो कुछ इस तरह से होगा. ये ग्राफ है और
और पहले बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर थोड़े टाइम से वो बॉडी मोशन में आ जाती है, ऐसे मोशन में आ जाती है। ये ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है। अब ये जो रीजन है इधर से ऐसे, वो स्टैटिक रीजन है, और ये जो इसके इधर का रीजन है वो काइनेटिक रीजन है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लिमिटिंग है, इधर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे होती है और यहाँ पे मोशन में होती है बॉडी, और उसका वेट इधर से थोड़ा कम हो जाता है। As the applied forces increase, the friction increases from O to A. The force of friction is maximum at point A when the body just tends to move. So point A shows the limiting static friction. ये हो गया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है, हम शॉर्ट में पढ़ लेते। फॉर्मूला है m इंटू g इंटू म्यू। ये जो साइन है ये म्यू होता है, MEW म्यू। ये mg को हम मोस्टली ऐसे नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू लिखते हैं। अब ये पूरे इसकी डिटेल में जानकारी हम पार्ट 2 में करेंगे और हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। और हम फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यू, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस वगैरह सब पढ़ेंगे, फिर कैलकुलेशन भी करेंगे। I hope you have understood till this. Thank you for watching. Let us meet in next part with more new information. Thank you for watching. Let us meet in part 2.